किसानों पर लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस ने खोला मोर्चा। सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में जमकर किया प्रदर्शन। सर फोड़ने के आदेश देने वाले एसडीएम को बर्खास्त करने की मांग। किसानों पर लाठीचार्ज का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। करनाल के कुछ लोगों ने दाखिल की याचिका। रिटायर्ड जज से जांच करवाने की मांग। रोहतक हत्याकांड में न्यूज 18 का बड़ा खुलासा। होटल में साथ में रुका था अभिषेक का साथी। सामने आई सीसीटीवी फुटेज। 25 अगस्त की रात बुक कराया था कमरा। सेब के गिरते दामों पर दिए बयान पर घिरे बागवानी मंत्री। कांग्रेस ने बोला हमला। कहा मंत्री साहब ने जले पर नमक छिड़कने का किया काम। चंबा के तीसा में गहरी खाई में गिरी पिकअप। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत। ड्राइवर की लापरवाही बताई जा रही है हादसे की वजह। नहीं रहे टीवी स्टार सिद्धार्थ शुक्ला। हार्ट अटैक से 40 साल की उम्र में निधन। रियलिटी शो बिग बॉस के रहे थे विजेता। ਕਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦਾ ਚੱਲੇਗਾ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਮੋਹਰ। ਕਿਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਟਿਕਟ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ। ਵੇਖੋ ਖਾਸ प्रोग्राम टिकट दी टक्कर आज रात 8 बजे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। सीधे आपको ले चलते हैं अकाली दल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दीप सिंह रुपालों, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਲੱਖਾ ਸ਼ਰਮਾ। ਪਿੰਡ ਆਲਮ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੱਖਾ ਸ਼ਰਮਾ। ਇਹਦੀ ਅਗਲੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਗਏ, ਅਗਲੀਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇ। ਹਰ ਆਪ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਮਲੋਟ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ। ਇਹ ਮਲੋਟ ਚ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਦਣ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਮਲੋ ਅਗਲਾ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾਈ ਦੀ। ਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜੇ ਨਾਲ। ਅਗਲੀ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾ। ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਖਲੋਤਾ ਆਪਣਾ ਭਗਵੰਤ ਨਾਲ। ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਅੰਨੀ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ। ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੋ। ਮਗਰ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਫਿਰ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋਊਗਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ? ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਜੈਨੂਇਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮਗਰ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਆਪ ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੋਗੇ ਰੈਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਪਾਟੇ, 15-20 ਗੱਡੀਆਂ ਤੋੜਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫੇਰ ਉਸੇ ਏਜੰਡਾ 'ਚ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ, ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ, ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਰਾਜ। ਕੰਮ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੂਫ ਮੈਂ ਦੇਤੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕੇਵਲ
ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਚ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਖੇਲ ਰਹੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਖੇਲ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਤਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ 2 ਲੱਥ ਜਾਣ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣ। ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰੱਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਗਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾਰਮਲ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਰੁਪਏ ਬੱਤੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਕੱਲ ਲਿਆ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ, ਤੂੰ ਹੀ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ 4 ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸੌਖਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਇਕੱਲਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਫਿਰਦਾ ਪੇਚ, ਕੱਢ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਡੂ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਅੰਡਰ ਦਿਸ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ? ਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕੰਮ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਐਟਲੀਸਟ ਪੀਪੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਗਰ 32 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘਟਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਜੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਬਿਤ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਆ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, 400 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚੀਫ ਵਿਪ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਡੀਅਰ ਮੈਂਬਰਸ, the special session of Punjab Vidhan Sabha is scheduled to be held on Friday the 3rd September 2021 at 10 a.m. in Vidhan Sabha Sector 1 Chandigarh. The presence of all members of Punjab Congress Legislative Party is very much essential in the House during all its sittings on Friday 3rd September 2021 without fail till the whole business of the hour is over. Therefore, all members of the Punjab Congress Legislative Party are requested to reach Punjab Vidhan Sabha Chandigarh. आरोप कांग्रेस पर लगाए गए हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। किसानों पर लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। हरियाणा के तमाम जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, सरकार के खिलाफ जमकर रोष जताया। हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। भिवानी, दादरी, जींद, करनाल, कुरुक्षेत्र और पंचकुला की तस्वीरें हैं। कांग्रेस ने तीनों कृषि कानून और भूमि अधिग्रहण कानून रद्द करने, महंगाई पर रोक लगाने और सर फोड़ने के आदेश देने वाले एसडीएम को बर्खास्त करने की मांग की। करनाल में कुमारी सैलजा की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रशासनिक अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। कुमारी सैलजा के मुताबिक सिर्फ अधिकारी दोषी नहीं है, सरकार भी जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार के ऑर्डर के बिना ना कोई लाठीचार्ज होता है और ना ही कोई घटनाक्रम। ये सब कुछ सुनियोजित था। जो एक बहुत बहुत बड़ा शर्मनाक इंसिडेंट हुआ है, जिस तरह से। और इस वक्त कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा मेरे साथ फोन लाइन जुड़े हैं। अशोक अरोड़ा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 में। थैंक यू मैडम। अशोक अरोड़ा जी, आज कांग्रेस का हल्ला बोल हुआ सरकार के खिलाफ, किसानों के हक में। क्या लगता है आपको, क्या कांग्रेस का दबाव काम आएगा? क्योंकि अभी तक मुख्यमंत्री साफ कर चुके हैं कि जो कार्रवाई हुई यही बनती थी, एसडीएम तक को वो क्लीन चिट दे चुके हैं। फिर कांग्रेस के इस शक्ति प्रदर्शन का क्या मतलब?
मैं ये कहना चाहूँगा, जब से ये सरकार बनी है जी दबाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि प्रजातंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। जी प्रजातंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार है। जब वो दिल्ली जा रहे जी, जी प्रजातंत्र में जहाँ तक बात कही मुख्यमंत्री ने, हेलो जी जी तो मैं ये कहता हूँ कि मुख्यमंत्री को घमंड नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री तो ये भी कहता है कि ये किसान यहाँ के नहीं है, तो कहा अशोक अरोड़ा जी, नेटवर्क तो सरकार को प्रॉब्लम है तुरंत आपके फोन में, इस वजह से हम लगातार आपको नहीं सुन पा रहे। प्लीज एक बार फिर कोशिश कीजिएगा कि आप नेटवर्क एरिया में आकर हमसे बातचीत करें, क्योंकि एक गंभीर मुद्दा जिसको लेकर लगातार कांग्रेस हल्ला बोल रही है, सरकार को घेर रही है, और आज जगह जगह जिलेवार तरीके से आज कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतरे हैं। 6 जगह की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। भिवानी, दादरी, जींद, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला की 6 तस्वीरें हैं। इनमें आप देख सकते हैं कांग्रेस ने किस तरीके से किसानों के हक में अपने संघर्ष को सड़क तक पहुंचाया है। कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है। करनाल में किसानों पर जो लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। इसके अलावा तीनों कृषि कानून, भूमि अधिग्रहण कानून रद्द करने की मांग भी की है। महंगाई पर रोक लगाने और सर फोड़ने के आदेश देने वाले एसडीएम को बर्खास्त करने की मांग एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से उठाई गई। भले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पुलिस की कार्रवाई का बचाव कर चुके हों, एसडीएम का बचाव कर चुके हों, इसके बावजूद कांग्रेस का ये कहना है कि इस मामले पर जांच होनी चाहिए और जो दोषी अधिकारी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपा गया था। उसके बाद आज कांग्रेस का ये हल्ला बोल प्रदेश की सड़कों पर दिखा, हर जिले में दिखा। भिवानी, दादरी, जींद, इसके अलावा करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला की 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, अपनी मांगों को बुलंद किया। और सिर्फ कृषि कानून किसानों का मुद्दा ही नहीं, बल्कि महंगाई पर रोक लगाने के लिए भी सरकार से मांग की है कि लगातार महंगाई की वजह से आम आदमी परेशान हो रहा है। ऐसे में सरकार को महंगाई पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि एलपीजी के दाम पिछले दिन ही बढ़े हैं और कमर्शियल के 75 रुपए, जबकि घरेलू एलपीजी के 25 रुपए दाम एक बार फिर से बढ़ा दिए गए। ऐसे में जो महंगाई आम आदमी को परेशान कर रही है, इस मुद्दे को भी कांग्रेस की तरफ से भुनाया जा रहा है। तो कांग्रेस की तरफ से आज हल्ला बोल किया गया। इस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा मेरे साथ फोन लाइन जुड़े हैं। केवल ढींगरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज कांग्रेस ने तमाम मुद्दों को लेकर, खासकर कि कृषि कानून, किसानों पर जो करनाल में कार्रवाई हुई, महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। क्या रणनीति है सरकार की को घेरने के लिए आगे कांग्रेस की, और आपको लगता है कि इस हल्ला बोल का असर सरकार पर होगा? आप ये देखिए, अगर हल्ला बोल हम नहीं करेंगे तो इसका असर लोगों पे होगा, जनता पे होगा। जनता के ऊपर इतना बोझ इस सरकार ने डाल दिया कि आप देखिए इस समय कितने टैक्सेस बढ़ गए, कितनी अब लोगों की, एक तो कोरोना में लोगों के बिजनेस गए, काम गए, लोगों की जॉब गई, उसके बाद भी अगर ये महंगाई बढ़ाएंगे तो लोगों के ऊपर तो असर होगा। और कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो ओपोजिशन में बीजेपी के अगेंस्ट बोलती है, और ये जो गलत काम कर रहे हैं, जो इनकी गलत नीतियां, उसको हम बताने का काम तो करेंगे और हम करते रहेंगे। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम आपस में जातियों को, धर्मों को बांटने का काम। हम लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि आप धर्मों में, जातियों में मत बटें। आप इस मोदी और जो खट्टर सरकार है इसको अलविदा करें, क्योंकि देश में अमन, चैन और लोग अपना सुख से काम कर पाए। एक ही पार्टी है देश के अंदर, कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने पूरे साल, इतने साल शासन किया और लोगों को अच्छा काम करने की आजादी दी, लोगों को सही सिस्टम दिए, इतना कुछ बनाया, और आज जो है वो उसी के ऊपर देश चल रहा है।
जी केवल ढींगरा जी, आप बने रहेगा मेरे साथ। दूसरी फोन लाइन से बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण अत्रे मेरे साथ जुड़ गए। प्रवीण अत्रे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। आज कांग्रेस की तरफ से तमाम मुद्दों को लेकर, खासकर जो कृषि कानून है, किसानों पर करनाल में जो कार्रवाई हुई है और महंगाई का मुद्दा, इसको लेकर वो सड़कों पर उतरे हैं। आरोप सरकार पर सीधे सीधे की महंगाई की मार, ऊपर से सरकार इस तरीके से किसानों पर, अन्नदाता पर अत्याचार कर रही है, ये सहन नहीं होगा। देखिए, कांग्रेस की जहां तक बात है, कांग्रेस एक राजनीतिक पाखंड कर रही है, क्योंकि जो राजनीतिक दल अपनी वैचारिक सोच को खत्म कर चुका हो, जिस राजनीतिक दल का वैचारिक दिवालियापन हो चुका हो, वो कांग्रेस जैसी हरकतें करेगा, स्वाभाविक है। किसान की बात करने वाली कांग्रेस मुझे ये बताए कि जब तक कांग्रेस सत्ता में रही, मैं सुन रहा था प्रवक्ता कह रहे थे बहुत लंबे समय सत्ता में रहे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या वजह थी कि किसान खुदकुशी करने के लिए मजबूर था? क्या वजह हुई कि 1995 में जब किसान अपनी मांगों के लिए दिल्ली गया, लोनी बॉर्डर पे गोली चला के आपने 4 किसान मार दिए? क्या वजह थी कादमा के अंदर जब किसान अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहा था, आपने गोली चला के 6 किसान मार दिए? क्या वजह थी कि संघ में जब किसान प्रदर्शन कर रहा था, आपने गोली चला के किसान मार दिए? कांग्रेस का तो इतिहास रहा है, लगातार किसान का शोषण किया। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी, प्रदेश में बनी, केंद्र में सरकार बनती है, कृषि बजट जो मात्र 22,000 करोड़ रुपए था, मोदी जी ने वो कृषि बजट 5 गुना, 5.5 गुना बढ़ा दिया। 1 लाख करोड़ रुपए मंडियों इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नाम से योजना लाए, किसानों के खाते में 6,000 सालाना जमा करना शुरू किया, किसानों के लिए पेंशन की योजना शुरू की, 3,000 रुपए माहवार पेंशन। का ये आरोप है कि आपने अगर इतनी योजनाएं चलाई हैं, इतने हितकारी फैसले लिए हैं, योजनाएं लागू की हैं, तो फिर किसान सड़क पर क्यों है? देखिए, पूरी तरह से राजनीति से प्रायोजित ये तथ्य तो अब सामने आ चुके हैं। पंजाब प्रदेश के कांग्रेस प्रधान जो पूर्व में थे, सुनील जाखड़, वो अपने बयान में कह चुके हैं कि इनको बॉर्डर पे कैप्टन साहब ने बिठाया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने बयान दे दिया था कि कांग्रेस के कार्यकर्ता को बॉर्डर पे बैठना है। ये तो अब जनता के सामने है, इसमें तो कुछ हिडन है नहीं है। केवल ढींगरा जी, तरह से राजनीति से प्रेरित है। आप राजनीति कर रहे हैं, सियासत भुना रहे हैं, उस मुद्दे पर तो बीजेपी का ये साफ साफ कहना है कि आप इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं। बार बार बीजेपी कह रही कि किसान तो है ही नहीं, तथाकथित कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या फिर असामाजिक तत्व हैं। देखिए, फिर ये 11 दौर की बात किससे कर रहे थे? अगर ये इनको किसान नहीं लगते तो जो 11 दौर की बातचीत की थी, तोमर जो मंत्री जी हैं, अपना कृषि मंत्री, और पीयूष गोयल, इन्होंने किससे मुलाकात की थी? वो किसान थे या कौन थे? अगर किसान नहीं थे तो उनसे मुलाकात क्यों की फिर इन्होंने? झूठ बोलने का काम जो है भारतीय झूठ पार्टी जो है बीजेपी करती है। इनको ये बताना चाहिए कि 11 दौर की बातचीत उन्हीं किसानों से कर रही थी और हम वहां नहीं गए थे और ना कांग्रेस पार्टी वहां पे मौजूद थी। कांग्रेस पार्टी किसानों के और आम जन के साथ और लोगों के साथ खड़ी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कुठाराघात कर रही है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो अदर कोई भी काम के लोग हो, चाहे वो कर्मचारी हो, सबके साथ कुठाराघात कर रही है। प्रवीण अत्रे जी, कांग्रेस ने आज एक और बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, महंगाई का। कोरोना काल, ऐसे में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और पिछले दिन ही 25 रुपए घरेलू एलपीजी के दाम बढ़ा दिए, कमर्शियल दाम भी 75 रुपए बढ़ा दिए गए। अब इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार क्या जवाब देगी, क्योंकि जनता त्राहिमाम कर रही है। महंगाई से राहत कब मिलेगी जनता को? देखिए, आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं कांग्रेस के मित्र का जवाब दे देता हूं। वो कहते हैं कि 11 दौर की वार्ता किससे की? कांग्रेस को ये समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि कांग्रेस ने कभी संविधान की पालना नहीं की। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो संविधान के अनुसार चलती है। और संविधान ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो देश का नागरिक है, भले ही वो किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता क्यों ना हो, अगर उसकी कोई आशंका है, वो सरकार से बात करना चाहता है, तो सरकार उससे बात करेगी। हमने इसीलिए 11 दौर की वार्ता की। दूसरी बात, जो महंगाई की आपने बात की, मैं ये जानना चाहता हूँ, एलपीजी का आपने जिक्र किया। जनवरी 2014 में सिलेंडर कितने रुपए का था? 1,039 रुपए का। मार्च 2014 में सिलेंडर कितने रुपए का था? 1,247 रुपए का। और आज कितने का है? 810 रुपए शायद।
उसके बावजूद अगर इस तरह का कुतर्क होगा तो कैसे जी, चलेगा जी। देश? माफ कीजिएगा लेकिन प्रवीण अत्रे जी और केवल ढींगरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का कि आप हमारे साथ जुड़े और इस गंभीर मुद्दे पर आपने अपनी पार्टी का पक्ष रखा। तो आज कांग्रेस का हल्ला बोल हुआ तब बीजेपी का वही आरोप कि कांग्रेस के कार्यकर्ता है न कि अन्नदाता या किसान। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।